Hello students. Today we are going to start our next topic in the chapter number 5, coal and the petroleum. But before we starting the next topic, let us take a brief preview on the previous lecture. What we have earlier studied in this chapter, that where is the coal come from, what is the origin from coal, what are the forms of the coal, what are the forms of uses that we have seen in the previous lectures. Okay. Uh, we have started the lecture from sources. So there are generally exhaustible sources and inexhaustible sources. So exhaustible sources are generally available in the markets. Sorry, exhaustible sources are the available from the nature, but it will not it will not finished in future, but inexhaustible sources are finished in the future. Okay, in the future reference. So inexhaustible are sources are categorized in the two categories, that will be renewable sources and नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बराबर. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा. उसके बाद हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखा था, कोल के बारे में देखा था कि कोल क्या है, स्टोरी ऑफ कोल हमने स्टडी किया था. उसके जो तीन फॉर्म्स हैं जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द कोक, कोल टार एंड कोल गैस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द पेट्रोलियम. Generally, petroleum is used as a fuel in light automobile, such as a motor, cycles और scooters and cars. तो क्या होता है कि भाई पेट्रोल जो होता है हम लोग बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. पर पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल के बारे में स्टडी करना है. पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर, कैरोसिन जो है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएगी. मोटर और साइकिल्स और स्कूटर्स और कार्स के अंदर, मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स एंड कार्स के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो जनरली हम लोग करते हैं पेट्रोल का. इसके बिना तो अभी हम लोग चल ही नहीं पाते. फिर चाहे वो 85 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक क्यों ना बढ़ जाए, प्राइस हाइक क्यों ना हो जाए, पर फिर भी हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो बंद नहीं करेंगे. ओके, क्योंकि हम लोगों का ये जो है वो अभी तो रिक्वायरमेंट हो गया, नेसेसिटी हो गया. इसके बिना हम लोगों का काम चल ही नहीं सकता. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on a diesel. Petrol and diesels are obtained from the natural resource called the petroleum. पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं और साथ ही साथ में पेट्रोलियम भी कहलाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से हुआ है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layer of sand and clay, and then over a million of years of process, absence of air, high temperature, high pressure, transformed this dead organism into the petroleum and natural gas. The natural gas generally consists of the two CNG and LPG, while petroleum consists the petrol, diesel, oil, gas, etc. Okay, so formation is formed how? First, the organisms in the sea are dead, and then it gets converted into the sand. It get covered with the layer of sand and clay, and then the thousands of millions of year process will be start. Also, this thousands of millions of years process will start in the absence of air. Also, it process will start on the high temperature, and it process start on the high pressure. And this process is conversion into these organisms into the petroleum and natural gas. While we are using this petroleum like a nonsense, ओके, हम लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही कुछ सोचे समझे बिना ही किए जा रहे हैं, क्योंकि इसको बनने के लिए थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं. पर फिर भी इसका इस्तेमाल हम लोग दे धनाधन किए ही जा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए हमको जनरली. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो हम लोगों को ज़मीन में कुछ इस तरह से मिलते हैं, बहुत ही नीचे से हम लोगों को देखने को मिलते हैं. स्क्रीन पे आप लोगों को शायद क्लियरली विजन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि फोटोग्राफ्स जो है वो थोड़ी सी खींच गई है, कंप्रेस्ड जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई इस वजह से. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है वो, पेट्रोलियम रिफाइनरीज की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर जनरली क्या होता है कि ये पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शनल किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर. मतलब कि पेट्रोलियम जो है वो एक साथ निकलता है, तो फिर अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग प्रोसेस से निकालना पड़ता है. मतलब पेट्रोलियम में साथ ही साथ सारी चीज़ें आ गई होती है. केरोसिन हो गया, डीजल, ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीज़ें एक साथ निकल गई. फिर उसमें से पेट्रोल को सेपरेट अलग करना है, फिर उसमें से सेपरेट ऑयल को अलग करना है, उसमें से सेपरेट डीजल को अलग करना है,
उसमें रहे हुए नेचुरल गैसेस सीएनजी एलपीजी को अलग से सेपरेट करना है। उसको करने के लिए रिफाइनरीज चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड चाहिए। ओके, तो वो रिफाइनरीज की इंडस्ट्रीज होंगी बहुत सारी। पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लेजेंट ऑर्डर, यानी कि बहुत बदबू आती होगी उसमें से। इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, एज आई ऑलरेडी टेल यू। The process of separating these various constituents, fractions of petroleum, is known as the refining. Okay, it is the important definition that you have to learn in this lecture, that what is the refining and what is the refining of petroleum. Generally, this is the industry regarding to separate the petroleums. Okay, it is the carried out in the petroleum refinery. It various constituents of petroleum and their uses. बहुत सारे जो है constituents है petroleum के अंदर, उसके uses क्या क्या है वो हमको स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला है पेट्रोलियम के अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। एलपीजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं होम इंडस्ट्री के अंदर, मोटर फ्यूल के अंदर। ओके, उसके बाद हो गया पेट्रोल। तो पेट्रोल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोटर फ्यूल के अंदर, ड्राई क्लीनिंग के अंदर। केरोसिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्यूल फॉर स्टोव्स के अंदर, लैंप्स के अंदर, जेट एयरक्राफ्ट्स के अंदर। डीजल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोटर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ल्यूब्रिकेशंस के अंदर। पैराफिन वैक्स जो है वो भी निकलता है पेट्रोलियम के साथ साथ, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैंडल्स, वैसलीन, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। बिट्यूमिन जो है वो एक टाइप का कोल ही है, पर फिर भी हम इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं हम लोग पेंट्स और रोड सरफेसिंग के अंदर। ओके, अब नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। जनरली नेचुरल गैस जो है वो क्या है? नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज यूजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. We can easily transport from anywhere to anywhere. Okay, we have to transport, if you want to transport the gas, then you need just a pipeline to get it the gas. Okay, अभी तो सारी जगहों पर बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पर तो ये पाइपलाइंस आ ही गई होंगी, जिसपे अभी तो मीटर लगा हुआ है। मीटर के अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा सिर्फ आपका बिल ही आ जाता है। पहले क्या होता था कि ये अभी धीरे धीरे ये सिस्टम जो आ रही है बहुत ही अच्छी भी है, थोड़ी सी इनसिक्योर भी है। क्योंकि क्या होगा कि जब भी पाइपलाइन सारी जगहों से आएगी आपके घर तक, तो अच्छा ये होगा कि आपको बार बार कोई भी एलपीजी के सिलेंडर्स के लिए फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना यूज़ करोगे उतना आपको मिलेगा, उतना आपका बिल आएगा, उतना पेमेंट कर देने का। पर इनसिक्योरिटी इसमें ये होगी कि पाइपलाइन जब भी जहाँ से निकलेगी तो वहाँ पर अगर आप सिगरेट पियोगे या फिर आप माचिस जलाओगे या फिर कोई भी गलती से भी लीकेज हो रहा होगा, then it will be cause the very high damage। क्योंकि फिर क्या होगा कि पूरा का पूरा पाइपलाइन जो है वो ब्लास्ट होगा पूरा का पूरा। तो इनसिक्योर है, इसीलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़्यादा रखने पड़ेंगे अगर इसका इस्तेमाल करना है हम लोगों को, इस सिस्टम का इस्तेमाल करना है तो। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसका इस्तेमाल भी नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स का, नंबर ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल करने बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इंडिया के अंदर नेचुरल गैस जो है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी उसके अंदर पाया जाता है, और वहाँ से हम लोग इसको रिकवरी करके फिर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल यूटिलाइजेशन एवरीवेयर करते हैं। ओके, पेट्रोलियम कंजर्वेशन क्या है? तो पेट्रोलियम को बचाने के लिए जो सारे गवर्नमेंट्स ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसको पेट्रोलियम कंजर्वेशन कहा जाता है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन advise the people how to save petrol or diesel while driving. Their tips are, तो जनरली पेट्रोल और डीजल को बचाया कैसे जा सकता है? एक तो ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। अगर आप लोग 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो 40 की स्पीड से आधे घंटे तक चलाए जाओ, मतलब अगर कोई ट्रैफिक ना हो तो की बात कर रहा हूँ, वरना फिर ऐसा बोलोगे सर ने बोला था 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाए जाओ, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना आ रहा हो, ऐसे नहीं। पर मतलब मान लो कि हाईवे पे जा रहे हो तो अगर एक ही स्पीड पकड़ के अगर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी की एवरेज भी अच्छी आएगी, पेट्रोलियम का इस्तेमाल भी बहुत कम होगा, आपका इंजन भी अच्छा वर्क करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, switch off the engine at the traffic lights or at a place where you have to wait.
क्या करोगे आप? स्विच ऑफ कर दोगे इंजन को जब भी ज़रूरत नहीं होगी, तो अगर ट्रैफिक लाइट्स के अगर आसपास खड़े हो तो भी बंद कर देने का। ओके, अगर कोई आपको साथ है तो आप उसको भी बता सकते हो कि भैया पेट्रोल बचाओ, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए काम चलेगा। तो आप भी बता सकते हो ना, बड़े बंदों को भी बता सकते हो, क्योंकि बड़े बंदों ने पढ़ाई नहीं की होती है तभी जाके तो वो इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं ना, वरना आपके जितने पढ़ाई की होती तो वो भी समझते हैं। तो अभी आप लोग बताओगे तो वो शायद आपको फॉलो भी करेंगे, आपका मानेंगे भी। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, अगर आपकी टायर का प्रेशर जो है अच्छा होगा तो अच्छे से गाड़ी चलेगी, तो कम फ्यूल जो है वो कंजप्ट होगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस करवाना चाहिए। अगर मेंटेनेंस रेगुलरली नहीं करवाओगे तो वो क्या होगा, आपका जो है कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा पेट्रोल और डीजल का। यहाँ पर जो है आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसके अलावा जो है दूसरी इन्फॉर्मेशन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Till then, bye bye everyone and take care of yourself.